So guys, electrochemistry basically है क्या? It deals with the relation between electrical energy and chemical energy. Okay, it deals with a relation between electrical energy and chemical reaction Okay, so if we talk about electrochemical cell, so electrochemical cell क्या है? Easiest method to produce electrical energy because no mechanical part is involved. Okay, electrochemical cell is the easiest instrument, you can say it is the easiest method which can be used to produce electrical energy because इसमें कोई mechanical part involved नहीं होता. तो electrochemical cell can be of two types. Okay, first one is electrolytic cell and second one is galvanic cell. Okay, galvanic cell, or we call it voltaic cell as well. Okay, you can call it as electrolytic cell or voltaic cell or galvanic cell. Okay, so electrolytic cell क्या? Electricity is passed and chemical reaction takes place. Electrolytic cell में क्या होता है? Electricity को pass किया जाता है. Electricity is passed and chemical reaction takes place. If we talk about galvanic cell, तो यहाँ पे if electricity is produced due to chemical reaction, यहाँ पे क्या होता है? Electricity is produced due to chemical reaction. So we have to discuss both. So first of all, let us start with galvanic cell. Okay, so let us start with the topic, that is galvanic cell. So guys, galvanic cell में there are three components. First one is oxidation half cell. Second one is reduction half cell. Third one is salt bridge. Okay, so galvanic cell में three components are there. First one is oxidation half cell, reduction half cell and salt bridge. So if we discuss about oxidation half cell, अगर हम oxidation half cell की बात करते हैं guys, so basically oxidation half cell में क्या होता है? Oxidation half cell में क्या होता है? Oxidation होता है. जैसे कि मेटल है, वो आपके इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा और कैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा. दिस इज इन अ सॉलिड स्टेट, ऑब्वियसली दिस विल इन द एक्वस स्टेट. ओके, सो इट लुक्स लाइक दिस. आपके पास एक कंटेनर है. अब इस कंटेनर में आपने एक मेटालिक प्लेट लगाई हुई है जिसमें से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? रिमूव होते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं. तो ये जो मेटल है वो यहाँ सोल्यूशन में जाएगा, और सोल्यूशन में किस फॉर्म में जाता है? सोल्यूशन में जाएगा इन द फॉर्म ऑफ अ Mn+ आयन. यहाँ से अगर n इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए हैं तो इट विल जंप डाउन फ्रॉम दिस मेटलिक प्लेट टू द सोल्यूशन. ओके, सो हम क्या कह रहे हैं? दैट यहाँ पे क्या हो रहा है? आपका मेटल इज आयोनाइज्ड. ओके, मेटल क्या हो रहा है? आपका आयोनाइज्ड हो रहा है इन सोल्यूशन एंड पॉजिटिव चार्ज इज इंक्रीज्ड. ओके, पॉजिटिव चार्ज इज इंक्रीज्ड इन द solution and there will be the charge difference between metal and solution. Okay, so there will be the charge difference between metal and solution, जिसकी वजह से potential is developed and that potential then ultimately results in oxidation potential. Okay, so it is denoted like this, that E से हम potential को denote करते हैं. M goes to Mn+. This is in a solid state and this is in the aqueous state. Okay, so this line indicates that metal are in the different phase. Both the metal, this metal is in the solid state and this metal is in the aqueous state. Okay, so this is first point. Then after that, what we can do is next point which we can discuss here is, guys, reduction potential. Okay, so reduction potential क्या होता है? What is reduction potential? We have to work on this also. So reduction potential, you can say reduction half cell. Okay, so reduction में obviously क्या होएगा? Metal जो है ionic form में इलेक्ट्रॉन को accept करेगा, n electrons को, and it will be converted to metal. तो basically, for example, if we have this container and in this if we have a metallic plate
देन होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन विल गेट इनसाइड, ओके, इलेक्ट्रॉन इस तरह से यहाँ पे जाएंगे और जो मेटल यहाँ सोल्यूशन में ऑलरेडी प्रेजेंट है इट विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस, ओके। तो बाय टेकिंग अप दिस इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे इस वजह से क्या हो रहा है, रिडक्शन, बिकॉज आपको पता है रिडक्शन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना। रिडक्शन मीन्स टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीडेशन मीन्स टू रिलीज इलेक्ट्रॉन, ओके। तो यहाँ पे आपका डिफरेंस इन चार्ज आता है सोल्यूशन फेज में एंड सॉलिड फेज में, और इस वजह से यहाँ पे आपका रिडक्शन पोटेंशियल डेवलप होता है। इसको हम डिनोट करते हैं EMN प्लस M से। यहाँ पे ये आपका एक्वस स्टेट में है मेटल और यहाँ पे ये सॉलिड स्टेट में है, ठीक है। अब यही चीज अगर स्टैंडर्ड कंडीशंस में होती है, ओके, स्टैंडर्ड कंडीशंस का मतलब क्या हो गया, स्टैंडर्ड कंडीशंस का मतलब हो गया जब आपका प्रेशर जो है वो 1 बार है, कॉन्सेंट्रेशन आपके सोल्यूशन की 1 मोलर है, और जो टेम्परेचर है वो जनरली 25 डिग्री C फिलहाल के लिए हम ले रहे हैं, दैट इज बेसिकली रूम टेम्परेचर ले रहे हैं हम उसमें, ठीक है। सो अगर स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं तो स्टैंडर्ड कंडीशंस में हम E के ऊपर एक नॉट लगा देते हैं, Mn प्लस एंड M, ये इंडिकेट करता है, ये सिंबल इंडिकेट करता है रिडक्शन पोटेंशियल को। एंड अगर इसी में मैं ऑक्सीडेशन की बात करती हूँ तो M गोज टू Mn प्लस, और यहाँ पे नॉट लगा देते तो ये इंडिकेट करता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को। सो दीज आर द सिंबल्स वी यूज व्हेन कंडीशंस आर इन स्टैंडर्ड स्टेट, ओके। अगर कंडीशंस आपकी स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं तो फिर हम स्टैंडर्ड कंडीशंस में इस तरह से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। आगे चलते हैं हम एंड लेट अस डिस्कस, लेट अस मूव फर्दर मोर। सो एक टॉपिक, एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज, ओके। तो सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, इट इज इन्वर्टेड यू ट्यूब इन विच सॉल्ट इज फिल्ड, इट इज इन्वर्टेड यू ट्यूब in which salt is filled, in which salt is filled, example sodium chloride, potassium chloride, sodium nitrate, okay, with agar agar paste, with agar agar paste, or you can say gel, okay। तो ये बेसिकली क्या होता है, कन्वर्टेड यू ट्यूब होता है जो कि दो ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल को कनेक्ट करता है, ओके। इसमें जनरली ये वाली सॉल्ट्स होती हैं। अब ये करता क्या है, व्हाट आर द कंडीशंस, करता क्या है, ये कनेक्ट करता है दो हाफ सेल को, इट कनेक्ट्स टू हाफ सेल। दूसरी बात, इट कंप्लीट्स द इंटरनल सर्किट, इट कंप्लीट्स इंटरनल सर्किट। उसके बाद में कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन, यहाँ पे जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन is somewhat nearly equal to conductivity of anion, okay। So conductivity should be high, that is high electricity, okay। So now if any of the half cell, अगर इन दोनों में से कहीं पे भी सिल्वर आयन प्रेजेंट है, मर्क्यूरी का आयन प्रेजेंट है, या फिर लेड आयन प्रेजेंट है, तो फिर ये सॉल्ट हम नहीं ले सकते, वी कैन नॉट टेक दिस, व्हाई, अदरवाइज दे विल प्रोड्यूस PPT, प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। वी कैन नॉट, अगर ये आयन्स प्रेजेंट हैं आपके सोल्यूशन में, देन यू कैन नॉट टेक KCl, NaCl and NaNO3 etc. These salts cannot be taken in the form of a paste because it will otherwise form precipitate, okay। So this is the working of salt bridge. Let's move again and let us see next thing, that is galvanic cell. So let us see about galvanic cell क्या होता है। तो जैसे कि हमारा गाइस डेनियल सेल होता है, ओके। तो गैल्वेनिक सेल एग्जाम्पल डेनियल सेल। तो हमारा जो जिंक है, copper in aqueous state move forward to give zinc ions and it will produce copper। तो ये जो जिंक है यहाँ पे, दिस इज मोर रिएक्टिव, ओके, ऑक्सीडेशन होगा उसका, और ये जिंक कॉपर का क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो देखो जो जिंक है वो जिंक 2+ में बदला, उसने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया, मतलब ऑब्वियसली ये ऑक्सीडेशन है। और जो कॉपर 2+ है, ऑब्वियसली उसने 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया होगा, वो बदला है कॉपर सॉलिड में, तो ये क्या है, रिडक्शन है, ओके। सो दिस इज द रिएक्शन। अब इसको हम डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं डेनियल सेल को। सो सी, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास इस तरह से कंटेनर्स हैं, दो हमने कंटेनर्स डाले बनाए। अब इन दोनों कंटेनर्स को हमने कनेक्ट किया इस तरह से, ओके, इस तरह से हमने कनेक्ट किया। किससे कनेक्ट किया, ये तो आपका हो गया, ये इलेक्ट्रोड्स है ना, दीज आर द इलेक्ट्रोड्स जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपका फ्लो करेगा। और उसके बीच में मान लो हमने क्या डाला हुआ है ना, सॉल्ट ब्रिज, ओके। लेट मी मेक दैट सॉल्ट ब्रिज हियर लाइक दिस, ओके। तो ये हमारा क्या हो गया, सॉल्ट ब्रिज हो गया। अब
ये जो कंटेनर है इसमें सोल्यूशन वाटर प्रेजेंट है, यहाँ पे भी क्या है, वाटर प्रेजेंट है, मतलब सोल्यूशन प्रेजेंट है। तो ये जो इलेक्ट्रोड है, दिस वन, दिस इज एनोड, से दिस इज एनोड, एंड दिस वन इज कैथोड। कैथोड इज द पॉजिटिव वन, एनोड इज द नेगेटिव वन। ओके, तो ये अगर जो मेटेलिक प्लेट है, अगर ये जिंक की है और ये हमने किसके लिए ली है, कॉपर की ली हुई है। सो अल्टीमेटली गाइज होने क्या वाला है कि यहाँ पे जो जिंक मेटल है, क्योंकि आप याद रखना एक बात, लोन, LOAN, दैट इज लेफ्ट साइड में जो इलेक्ट्रोड होती है उसमें हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और वो एनोड होती है और वो नेगेटिव होती है। इस लाइन से आप याद रख सकते हैं इस पर्टिकुलर डायग्राम को। ओके, जो लेफ्ट साइड वाली है उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, एनोड है और नेगेटिव साइन उस पर, देखो, देख लिया आपने, ठीक है। अब देखो, जो जिंक है वो नीचे जाएगा इन द फॉर्म ऑफ अ जिंक 2+ आयंस, एंड बट ऑब्वियस 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से इधर मूव करेंगे और करंट आपका इधर मूव करेगा, फिर है ना, इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से मूव करेंगे, करंट इधर मूव करेगा। दिस पर्टिकुलर फ्रेगमेंट, दिस वन इज अ सॉल्ट ब्रिज। ओके, तो दिस इज अ सेटअप, और जिसमें क्या प्रेजेंट है, पोटेशियम क्लोराइड या को अगर सोल्यूशन में डिसॉल्व करके डाल दिया, इसमें सीमेंटेड किया हुआ है। और यहाँ पे जो आपके कॉपर आयंस थे सोल्यूशन में, वो यहाँ पे जाके PPT बना देते हैं, कॉपर सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे मैंने सोल्यूशन लिया था जिंक सल्फेट का, यहाँ पे मैंने सोल्यूशन लिया था कॉपर सल्फेट का, और ये रॉड मैंने ली कॉपर की, और ये रॉड मैंने ली जिंक की, ठीक है। तो जो ये वाला सेल है गाइस, ये वाला, लेट मी यूज अनदर कलर, तो जो ये वाला सेल है, दिस इज एक्टिंग एज ऑक्सीडेशन होएगा यहाँ पे, तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल हो गया ये वाला। तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, तो इसके लिए अगर मैं इक्वेशन लिखना चाहूंगी तो जिंक विल गो टू जिंक 2+ एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स विल गेट एलिमिनेटेड। तो यहाँ पे जो जिंक 2+ आयंस है वो इंक्रीज कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन में, ओके। और इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये हमारा ऑक्सीडेशन हाफ सेल। इधर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इज अ रिडक्शन हाफ सेल, दिस इज रिडक्शन हाफ सेल। एंड जो कॉपर आयंस हैं वो क्या कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं, कॉपर मेटल में बदल रहे हैं, और यहाँ पे जो कॉपर आयन का कॉन्सेंट्रेशन है सोल्यूशन में वो डिक्रीज कर रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ओके, तो ये हमारी रिएक्शन होगी एनोड पे, और ये वाली जो रिएक्शन होगी ये होगी आपकी कैथोड पे। ओके, ये कैथोड पे, ये एनोड पे। सो अब आगे अगर हम लेके चलते हैं, सो गाइज होगा क्या कि इफ वी टॉक अबाउट एनोड, तो एनोड में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और अगर उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है तो जिंक विल गो टू जिंक 2+ आयंस एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स विल गेट एलिमिनेटेड। तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल विल बी E0, जिंक गोज टू जिंक 2+, है ना, दिस विल बी द सिंबल। एंड अगर हम बात कर रहे हैं रिडक्शन की, यानी कि कैथोड पे क्या हो रहा है, तो कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो अगर रिडक्शन हो रहा है तो क्या हो रहा है, कॉपर आयंस 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, इट इज कन्वर्टेड टू कॉपर मेटल। तो ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हो गया SRP, इसको हम डिनोट करेंगे Z0। कॉपर 2+ किस में बदल रहा है, कॉपर मेटल में बदल रहा है। ये आपका एक्वस फेज है, ये आपका सॉलिड फेज है, ये आपका सॉलिड फेज है, ये आपका एक्वस फेज है। ओके, सो ओवरऑल अगर हमें नेट रेडॉक्स की बात करोगे तो नेट रेडॉक्स रिएक्शन क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स को खत्म कर दो यहाँ से, तो जिंक सॉलिड कॉपर एक्वस के साथ कनेक्ट होके जिंक 2+ एक्वस एंड कॉपर सॉलिड में बदल रहा है। तो यू कैन सी इजिली दैट जिंक मेटल यहाँ पे जा रहा है, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है बिकॉज उसने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, एंड आपको पता है इलेक्ट्रॉन को लूज करना मीन्स ऑक्सीडेशन। और यहाँ से यहाँ जब ये जा रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, बिकॉज इसने 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है ना कॉपर ने 2+ से, तभी तो 0 में गया। तो मैं ये कह सकती हूँ कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज करती है तो वो रिडक्शन है, और यहाँ मैं कह सकती हूँ अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करती है तो वो ऑक्सीडेशन है। कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट, पॉजिटिव। कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की। ओके, प्लीज नोट दिस पार्ट। सो अब यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व है, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व आर 2। ओके, तो ये हमारा ओवरऑल रेडॉक्स रिएक्शन थी, दिस वन इज ओवरऑल रिएक्शन, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन, दिस वन। फर्दर अगर हम आगे चलते हैं गाइस, तो आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ ऐसा होता है, लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास जिंक है, इसको मैंने कॉपर आयन दिया, तो ये किस में जा रहा है, जिंक आयन में जा रहा है और कॉपर दे रहा है, तो क्यों, ये क्या होता है, दिस इज रिएक्शन कोएफिशिएंट बोलते हैं हम इसको, है ना, रिएक्शन कोएफिशिएंट, एंड इट इज डिनोटेड एज
रिएक्ट, ये जो प्रोडक्ट साइड है डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो जिंक 2+ की कॉन्सेंट्रेशन, कॉपर डिवाइडेड बाय कॉपर 2+ की कॉन्सेंट्रेशन एंड देन जिंक। अब एक बात नोट करना है कि जो कॉपर है और जो जिंक है उनकी कॉन्सेंट्रेशन को हम मानेंगे 1, बिकॉज वो क्या है, सॉलिड स्टेट में। इस बात को याद रखना, यानी कि इनको हटा दो तो लिखने की जरूरत नहीं, यानी कि जो Q होगा रिएक्शन कोएफिशिएंट दैट विल बी जिंक आयन डिवाइडेड बाय कॉपर आयन। ओके, उसके बाद आगे अगर मैं बोलूं आपको तो गाइस स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो कि एनोड पे था प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो कि कैथोड पे था, वो ही आपका ई नॉट किसका होगा, सेल का। वो चीज क्या हो जाएगी आपकी सेल की ई नॉट हो जाएगा, है ना, दैट विल बी द ई नॉट ऑफ अ सेल। सो इफ आई वांट टू राइट इट देन ई नॉट ऑफ जिंक 2+ plus E naught of copper 2+2 copper will give me E naught of the cell. Am I clear? That will be the E naught of a cell. Furthermore, अगर हम आगे चलते हैं, so guys देखो उसके बाद का कॉन्सेप्ट क्या होता है। उसके बाद का कॉन्सेप्ट ये है दैट सेल पोटेंशियल इज द पोटेंशियल डेवलप्ड इन सेल ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू हाफ सेल्स। ओके, सो सेल पोटेंशियल अगर मुझको निकालना तो मैं आपको एक बार बताती हूँ, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ SRP। okay, and you can use some formulas which I will be writing. E naught cell is equal to SOP anode plus SRP cathode, या तो आप ये यूज कर सकते हो या फिर आप यूज कर सकते हो E naught cell is equal to SOP anode minus SOP cathode. Next you can use E naught cell is equal to SRP cathode minus SRP anode. ठीक है, आगे चलते हैं, यहीं पे लिख देती हूँ मैं। ओके, सो दीज आर सम पॉइंट्स एंड जनरल कंडीशन अगर मैं बताऊँ आपको तो गाइज ई सेल दैट विल बी रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, देयर आर मेनी फॉर्मुलाज विच यू कैन यूज, माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, दैट इज दिस वन ऑल्सो यू कैन यूज डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू क्या दिया है। ठीक है, बाकी सबका आंसर सेम आएगा, यू कैन यूज एनी ऑफ द वन। नाउ लेट अस डिस्कस सेल रिप्रेजेंटेशन, how to represent a cell. Okay, so सबसे पहले तो what you need to do, need not to write that condition, मैं आपको बता देती हूँ गाइस। देखो एनोड को पहले लिखते हैं, देन ये सॉल्ट ब्रिज को इंडिकेट करता है एंड देन कैथोड पे जो भी होता है उसको लिखते हैं, एंड जो भी सोल्यूशन या फेज होता है उसको यहाँ पे लिख देते हैं, है ना। तो ये जो है ये डबल सिंबल ये इंडिकेट कर रहा है सॉल्ट ब्रिज को। ओके, एनोड इंडिकेट कर रहा है ऑक्सीडेशन को एंड कैथोड इंडिकेट करता है रिडक्शन को। ओके, सो नाउ लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं डैनियल सेल की बात करें, अगर हम डैनियल सेल, तो हमें पता है डैनियल सेल क्या था, जिंक प्लस कॉपर 2+ गया था जिंक 2+ एंड कॉपर में। ठीक है, तो इसके लिए अगर मुझे लिखना है तो आई राइट जिंक गोज टू जिंक 2+, देन आई पुट डबल बार, देन आई राइट कॉपर 2+ गोज टू कॉपर। तो ये इंडिकेट कर रहा है एनोड पे क्या हुआ, ये इंडिकेट कर रहा है कैथोड पे क्या हुआ, और ये इंडिकेट कर रहा है सॉल्ट ब्रिज के सिंबल को। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन यूज, फाइन। तो अब हम कुछ रैंडम क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं इसी चीज को। सो लेट अस मूव फॉरवर्ड। जैसे कि गाइस एक छोटा सा एग्जांपल है, से A goes to A+3 and B+2 goes to B. Okay, E naught of A to A+3 is equal to 4 volts and E naught of B+2 is equal to 1 volt. And यहाँ पे concentration given है 0.01 मोलर एंड इसकी concentration given है 0.1 मोलर। ओके, B+2 की ये, A+3 की ये। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट E naught ऑफ द सेल। ठीक है, एंड दूसरा इसी में है नेट सेल रिएक्शन लिखनी है आपको। सो लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो गाइस सबसे पहले तो E naught ऑफ अ सेल, यू नो अभी मैंने आपको बताया था E naught ऑफ अ सेल इज इक्वल टू E naught ऑफ A goes to A+3 प्लस E naught goes to B+2 to B। सी दिस वन एज सच, इसको ऐसा लिख दो, इसको ऐसा लिख दो, बस हो गया फॉर्मूला। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी है, A goes to A+3 4 वोल्ट,
प्लस बी टू बी प्लस 2, और यहाँ तो बी प्लस टू बी है, तो ये माइनस में लिखना पड़ेगा मुझे ना, तो -1 वोल्ट हो जाएगा. सो आई गेट 3 volts. So E naught of the cell is 3 volts. Fine. Now I have to find out the net equation. So net equation यहाँ लिख देते हैं. So net equation में सबसे पहले I have to write at anode क्या हुआ, तो ये ऐसे कुछ था ना, A, then A plus 3, then double bar, then B plus 2, and then B. So how to write? First of all anode वाली equation लिख लो. तो A कहाँ जा रहा है, A plus 3 में जा रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है, और जो B plus 2 है कैथोड पे, वो 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है और कहाँ जा रहा है, B में. अब मुझे क्या करना है, इनको इक्वेट करना है. अब इक्वेट करने के लिए मल्टीप्लाई दिस बाय 2, मल्टीप्लाई दिस बाय 3, सो दैट ये इलेक्ट्रॉन्स आपके कैंसिल आउट हो जाए. आपको इस तरह से इक्वेट करना होता है कि इलेक्ट्रॉन्स आपके कैंसिल आउट हो जाए. तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, लेट मी यूज येलो कलर फॉर द सेम. तो यहाँ मुझे मिल जाएगा 2 of A gives 2 of A plus 3 plus 6 electrons, एंड यहाँ मुझे मिल जाएगा 3 of B plus 2 plus 6 electrons gives 3 of B. So these will get eliminated, right? So मुझे क्या मिला है, 2A plus 3B plus 2 gives twice of A plus 3 plus 3 of B. तो ये मेरी होगी नेट इक्वेशन. ओके, अब ये तो हमारा नेट इक्वेशन है. उसके बाद में इफ आई वांट टू फाइंड आउट द रिएक्शन कोएफिशिएंट, तो K Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस अपॉन दिस, बिकॉज ये तो सॉलिड है. दिस वन इज ऑल्सो सॉलिड, दिस वन इज एक्वस, एंड दिस वन इज एक्वस एज वेल. सो मैं इसको तो लूंगी नहीं, मैं बस इसको लूंगी. तो जो रिएक्शन कोएफिशिएंट है, मैं उसको थोड़ा आगे लिखती हूँ. तो जो रिएक्शन कोएफिशिएंट है दैट विल बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A plus 3 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B plus 2. अब देखो इसमें 3 है, इसमें 2 है ना, तो ये जो 2 है, 2 रेज टू दी पावर 2, इसमें 3 है, तो ये रेज टाइप की जो होती है उसको रेज टू दी पावर 3 कर देते हैं. इसको कैलकुलेट करोगे तो A plus 3 की वैल्यू आई 0.01 दिया था, उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय B plus 2 की वैल्यू 0.1 का क्यूब हो जाएगा. तो इफ यू विल कैलकुलेट यू विल फाइंड Q टू बी 0.1. ओके, सो दिस इज हाउ क्वेश्चन यू कैन सॉल्व क्वेश्चंस दिस टाइप ऑफ इस टाइप की चीजों से आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं. ओके, नाउ लेट अस डिस्कस नेक्स्ट थिंग, दैट इज रिलेशन बिटवीन डेल्टा G एंड E. ओके, relation between delta G and E. Okay, so now see, delta G guys क्या होती है, delta G is Gibbs free energy change, and it is given by minus NFE, and where N is the electron involved in reaction, and F is the Faraday's constant. It is Faraday's constant, and 1 Faraday is equal to 96500 coulomb, and E is equal to cell potential. E is the cell potential. Okay, so delta G is equal to minus NFE not ये आपका हो गया delta G. Okay, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी. ओके, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी. फाइन, सो आगे चलते हैं. सो गाइस देखो, अगर हम 1 फैराडे की बात करेंगे, वी टॉक अबाउट 1 फैराडे, तो दैट इज 1 फैराडे इज द चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन. चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन. सो 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 6.022 into 10 to the power 23 electrons, and charge on 1 electron is equal to 1.602 into 10 to the power minus 19 coulomb. So total charge जो होता है that is equal to 6.022 multiplied by 10 to the power 23 multiplied by 1.6022 multiplied by 10 to the power minus 19 coulomb. So you'll get 96500 coulomb. So this is how it have come. That is 1 Faraday is equal to 96500 coulomb. Okay, now let's move forward. So let us solve one छोटा सा question. So that is 3A plus 2B plus 3 gives 3A plus 2 plus 2B. Okay, so E naught A of A plus 2 is equal to 6 volts, and E naught of B2 B plus 3 gives 1 volt. Find delta G naught. Okay, so we know
we know that delta G naught is equal to minus NF E naught, and E naught is equal to 6 volt minus 1 volt, that will give you 5 volt E naught. Okay, and already N is equal to 6, number of electrons involved are 6 here, you can see, right? 3 and 2, 3 to the 6, okay, 6. So delta G naught will be minus NF E naught. So N की value 6 multiplied by Faraday 96500 multiplied by E naught, that is 5 volt. You can calculate and you get the answer. Okay, so this is how it works. So now let us discuss next thing, that is properties of Gibbs energy function. Okay, properties of Gibbs energy function. So guys, first of all, A goes to A plus 2 and 2 electrons are eliminated. So delta G अगर x है और अगर मैं जाती हूँ A plus 2 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे और A में चले जाए तो तब डेल्टा G क्या हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा. मतलब दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी. सेकेंड प्रॉपर्टी इज डेल्टा G इज एक्सटेंसिव. एक्सटेंसिव मतलब इट इज मास डिपेंडेंट, मास पे डिपेंड करता है. ओके, मास पे डिपेंड करता है. नेक्स्ट थिंग इज लाइक मतलब फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, ए आपका A plus 2 में बदला एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स लीज हुए तो उसका जो डेल्टा G है दैट इज x. और अगर मैं लेती हूँ N ऑफ A, उससे मुझे N ऑफ A plus 2 मिलता है और उससे मुझे 2N E इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो डेल्टा G विल बी NX. मतलब इट इज डिपेंडेंट ऑन द मास. ओके, एंड उसके बाद में जो नेक्स्ट चीज है गाइस, जो नेक्स्ट चीज है थर्ड, वो है डेल्टा G इज एन एडिटिव प्रॉपर्टी. It is an additive property. What does it mean? That अगर A goes to A plus and electron is eliminated, and if A plus goes to A plus 3 and 2 electrons gets eliminated, then if delta X is equal to delta G for this is X and delta G for this is Y, then if we calculate, then I'll get A goes to A plus 3 and 3 electrons, no, because this will get eliminated. So इससे जो डेल्टा एक्स आएगा, डेल्टा जी आएगा, दैट विल बी एक्स प्लस वाई. सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ गिब्स फ्री एनर्जी. बट इफ आई राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ E, if I write properties of E, that is EMF, then first is if A goes to A plus 2 and 2 electrons are eliminated, and if A plus 2 except 2 electrons and if it is converted to A, then E is equal to X and here E is equal to minus X. True, first line. Second, E is intensive. It does not depend on the mass. It is intensive property. It is independent of the mass. Independent on mass. Okay. Matlab if A goes to A plus 2 and 2 electrons gets eliminated, and if N of A goes to N of A plus 2 and N of 2 electrons, then here if answer is delta G is X. I'm sorry, E, not delta X, okay, E. If E is X, then here also E will be X only. There will be no change depending on the moles. Okay. Third part is E is non-additive. It cannot be added like this randomly. Okay. It is non-additive. Means if A goes to A plus and 1 electron gets eliminated, if A plus furthermore X gets converted to A plus 3 and 2 electrons gets eliminated, then overall we'll get A goes to A plus 3 and 3 electrons gets eliminated. Then if here E1 is equal to X and if here E2 is equal to Y, then E3 will not be equal to X plus Y. This is the point of differences between Gibbs energy function and EMF. Okay, so I hope you must have understood, guys. See you in the next lecture. Till then, happy learning. Bye bye. Take care. Reaction खुद ब खुद हो जाए, right? Evaporation of water occurs without any external force, right? Okay. So we have two types, that is spontaneous, and then we have another types of reaction which are non-spontaneous. So non-spontaneous, which does not occur without any external force, okay, which does not occur without any external force. And अगर हम spontaneous की बात करेंगे, so it occurs without any external force.
Like for example, evaporation of water. Okay, evaporation of water takes place and it is spontaneous. Okay, so what are the conditions? First point, delta G should be negative. Okay, if delta G is negative, then reaction is spontaneous. And if delta G is positive, then reaction is non-spontaneous. Okay, if delta G is positive, then it will be non-spontaneous. So delta G is a function of thermodynamics which predicts the spontaneity of any reaction. Okay, so what is delta G? It is a thermodynamic variable, a thermodynamic part. Okay, so spontaneity can be checked by only by delta G and E cell, not by delta G naught. You have to note this, that by delta G naught you cannot find out the spontaneity. You have to find it by using delta G only. Okay, so let's get one question solved. So देखो, for example मेरे पास A है, A plus 2, then we have B plus 3 and then B. Okay, so it is given that A plus 2 is equal to 6 volts, and if B of B plus 3, it is given as 6 volt. Okay, question is you have to check the spontaneity. पहली बात तो you have to check whether it is spontaneous or not, and then write down the cell equation or cell reaction. So how to work with it? सबसे पहले देखो guys, E naught cell is equal to E of A goes to A plus 2 plus E naught B plus 3 to B. Okay, so it is given as 6 volt minus 8 volt. So answer is minus 2 volt. So E naught cell आपका minus 2 volt है. तो डेल्टा जी अगर आप कैलकुलेट करोगे आंसर इज माइनस एन एफ ई नॉट, है ना. तो इट विल बी माइनस एन एफ माइनस 2 वोल्ट, दैट विल बी पॉजिटिव 2 एन एफ वी. तो पॉजिटिव आते ही हम क्या बोलेंगे, रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब अपने आप नहीं होगी. ओके, दिस रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस. एंड इफ आई वांट टू राइट डाउन द इक्वेशन, द सेल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम, सो देखो हमको पता है क्या था सेल इक्वेशन, A plus 2 then B plus 3 to B. तो A कहाँ गया, A plus 2 में and 2 electrons, and जो B plus 3 है उसने बट ऑब्वियसली 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया होगा, कहाँ गया होगा, B में. दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2. So again you have to nullify the electrons, so just multiply this by 3, multiply this by 2. So for this equation you will get 3A gives 3 of A plus 2 plus 6 electrons, and for this equation you will be getting 2 of B plus 3 plus 6 electrons, and it will give you 2 of B. So these two will get cancelled out and you will get the final equation. I'll write it here, that is 3A plus 2 of B plus 3 gives 3 of A plus 2 and 2B, and this equation is 100% non-spontaneous. This will not work अपने आप. This is non-spontaneous because हमने निकाला ये निगेटिव आया और ये पॉजिटिव आया. हमें पता है डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव इन ऑर्डर टू गेट इट स्पॉन्टेनियस, बट यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस. फाइन, सो लेट्स मूव आगे. लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नर्स्ट इक्वेशन. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज नर्स्ट इक्वेशन. नाउ व्हाट इज नर्स्ट इक्वेशन? सो गाइज, नर्स्ट इक्वेशन बेसिकली किस लिए होती है, यू नो जब आपको चीज़ें एक स्टैंडर्ड कंडीशंस में नहीं गिवन होती तो उस वक्त ई नॉट से काम नहीं बनता, तब आपको ई निकालना पड़ता है. दैट इज नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस में ईएमएफ, उसी के लिए होती है नर्स्ट इक्वेशन. ओके, जैसे कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आर टी लॉग टू द बेस 10 क्यू. ओके, अब ये जो R है यहाँ पे, ये है आपका गैस कांस्टेंट. ओके, दिस इज गैस कांस्टेंट. T is the temperature in Kelvin. Q is the reaction quotient. This is the reaction quotient. Delta G naught is standard Gibbs energy, and this is Gibbs energy change. This is Gibbs energy change. Okay, so
delta G is equal to minus NFE, delta G naught is equal to minus NFE naught, and so easily if we just calculate, we'll get minus NFE is equal to minus NFE naught plus 2.303 RT log to the base 10 Q. So E is equal to E naught minus 2.303 RT NF log to the base 10 Q. Already I have told you what is Q, reaction quotient. Okay. So now if temperature is equal to 298 Kelvin, that is 25 degrees C. Okay. And if R की value is 8.314 joule per mole Kelvin, means that is gas constant. And if F की value is 96500 coulomb, that is 1 mole charge, electron का charge, then E is equal to E naught minus 0.0591 upon N log to the base 10 Q. So this is the Nernst equation, which is simplified version. E is equal to E naught minus 0.0591 upon N log to the base 10 Q. So this is the Nernst equation which you can use in case of standard condition, and 99.99% case में आपको अगर question आएगा तो that will be on with respect to standard conditions only. So let us solve some of the questions to get it more clear. So देखो, जैसे for example मेरे पास एक सवाल है a+3, फिर हम गए b+2 से b पर, and E naught is A to A+3 and it is 6 volts, and E naught B से B+2 is 4 volts. Okay, यहाँ पे concentration is 0.1 molar and यहाँ पे concentration is 0.01 molar. So you have to find out value of E naught cell and B E cell, and this is cell potential. This is cell potential. Okay, so now guys, if we move आगे, इसी को अगर हम आगे लेकर चलते हैं, so इसके आगे क्या है कि हम गए A+3 पे, then B+2 to B. So E naught cell is equal to E naught A to A+3 plus E naught B+2 to B. So that will be 6 volt minus 4 volt. That will be 2 volt. Okay, this will be the ultimate concept. So ये तो हमारा निकल गया. अब आगे चलते हैं. आगे का concept क्या है? Net cell equation या net cell reaction. So A goes to A+3 plus 3 electrons. Similarly, B+2 plus 2 electrons give B. This is equation number 1. This is equation number 2. Multiplies by 2. This by 3. So as to, so I'll just write directly. Okay guys. So we'll get 2A plus 3 of B+2. It will give me twice of A+3 and thrice of B. Okay. N is the electrons involved. How many electrons are involved here? 6. Okay. N की value क्या है यहाँ पे? 6 है. And we know reaction quotient is equal to A+3. Already I have told you this thing. Divided का square divided by B+2 का cube, that is 0.1 का square divided by 0.01 का cube, that will give you 10 to the power 4. So cube will be 10 to the power 4. So if we just put it in that particular equation, so E cell is equal to 2 minus 0.0591 upon 6 log to the base 10, 10 to the power 4. If you calculate, then एक formula होता है guys, let me use another color for the same, like log m log to the base 10, 10 to the power अगर n है तो it is n log 10. Okay, and log 10 तो 1 होता है, तो n multiply by 1 हो जाएगा उसका आंसर. Okay, so if you just calculate this, so you'll get 2 minus 0.0591 upon 6 multiplied by 4. Okay, now just calculate and you'll get the answer. Fine. So this is how it works. Now let us get दूसरे टॉपिक पे आते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज केसेस. वी हैव सम केसेस इसमें, है ना. तो केस नंबर 1, इफ सेल इज एट इक्विलिब्रियम, then delta G is equal to 0, and if delta G is 0, then E cell is equal to 0. Okay, that means no electricity is produced. इसका मतलब क्या हो गया? No electricity is produced as same number of electrons flows from left to right and vice versa. Okay, so at that time delta G is equal to 0, E cell is equal to 0,
Q is equal to K. So E is equal to E naught minus 0.0591 upon N log to the base 10 Q. तो इसको सिंप्लीफाई करके क्या आ जाएगा आंसर, बिकॉज K तो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा ना, तो यहाँ Q, K की जगह पे मैं Q लगा दूंगी. तो आई राइट E naught इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन N log to the base 10 Q. तो बस फिर नेक्स्ट इक्वेशन इस पर्टिकुलर इक्वेशन में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी. एंड इसके रिस्पेक्ट में एक क्वेश्चन कर लेते हैं. जैसे कि एग्जांपल 2a plus 3b plus 2 gives 2 of a plus 3 plus 3b. So k is equal to 10 to the power 12. E naught a to a plus 3 is equal to 4 volts. And E naught b plus 2 to b is equal to watt. So if you want to calculate, then E naught cell is equal to E naught a to a plus 3 plus E naught b plus 2 to b. Okay, so now E naught is equal to 0.0591 upon N log to the base 10 K. K की वैल्यू 10 to the power 12 given है क्वेश्चन में. So I'll write E naught is equal to 0.0591 upon 6 multiplied by 10 to the power, log to the base 10, 10 to the power 12. So I'll get 12 multiplied by 0.0591 upon 6. So it will be nearly equal to 0.1182. Okay, E naught मुझे मिला. Now E naught b plus 2 to b will be E naught cell minus E naught a of a plus 3, and I can calculate using this particular formula furthermore. Okay, so this is how you can subdivide that part. Now आगे move करते हैं. Second case, case number 2 is concentration cell. Concentration cell क्या होता है and how to deal with it. So concentration cell is when anode or cathode are same. Okay, same electrode है अगर दोनों, but potential is developed due to concentration difference. मतलब क्या कि आपने दो सेल को कनेक्ट किया और दोनों सेल के जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो सेम है, बस उनमें पोटेंशियल क्यों अगर सेम है तो मतलब पोटेंशियल डेवलप नहीं होना चाहिए. बट पोटेंशियल कैसे डेवलप होता है, ड्यू टू डिफरेंस इन द कॉन्सेंट्रेशन. तो इस वक्त ई नॉट सेल क्या होता है, 0. तो ई सेल का फॉर्मूला निकल के आता है माइनस ऑफ 0.0591 अपॉन एन लॉग टू द बेस 10 क्यू. तो ये आपका इक्वेशन हो जाएगा. ओके, एंड स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे जो Q की वैल्यू होती है वो 1 होती है, तो फिर वो यहीं पे रिड्यूस हो जाएगा. ओके गाइस, तो एक क्वेश्चन से समझ लेते हैं, बेटर होगा. सो लेट मी राइट दैट क्वेश्चन हियर ओनली. ओके, क्वेश्चन इज जिंक प्लस 2 जिंक 2 प्लस एंड देन जिंक. यू कैन सी, देखो दोनों सेम है, बस क्या है यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है 0.01 मोलर, और यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज 10 to the power -4 मोलर. तो कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल चेंज हुआ. तो एनोड पे क्या होगा, जिंक विल मूव टुवर्ड्स जिंक 2 प्लस आयंस एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स विल गेट एलिमिनेटेड. कॉन्सेंट्रेशन इसका 0.1 है और ई नॉट जिंक से जिंक प्लस 2 में जाएंगे तो एक्स आएगा. ओके, एंड इसी में अगर मैं आगे चलती हूँ तो गाइस जो कैथोड है उसमें क्या होगा, जिंक प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है, कन्वर्ट हो जाएगा जिंक में. सो C2 कॉन्सेंट्रेशन 10 to the power -14 है. तो जो E नॉट जिंक 2 प्लस 2 जिंक है वो -x, और E नॉट सेल तो वैसे भी 0 ही गिवन है. तो रिएक्शन क्वेश्चन क्या हो जाएगा, जिंक प्लस 2 अपॉन जिंक प्लस 2 दैट विल बी 0.01 अपॉन 10 to the power -4 दैट विल गिव यू 10 to the power 2. तो अब अगर मुझे E सेल निकालना है तो वी नो दैट E सेल इज इक्वल टू E नॉट माइनस 0.0591 अपॉन n log to the base 10 10 to the power 2, that is this thing value given है. So यहाँ पे ये तो 0 होता है हमें पता है, तो माइनस 0.0591 अपॉन n की वैल्यू 2 है, log to the base 10 10 to the power 2 that will be minus 0.0591 multiplied by 2 divided by 2 that will be minus 0.0591. Okay, so this will be the ultimate answer. So E cell क्या आया 0.0591, खत्म. Okay, so this is how these types of questions are. Okay, so now let us discuss another topic of the day, that is reference electrode. Okay,
So now next topic is reference electrode. So guys, reference electrodes are the electrodes which are used to measure electrode potential of other half cell. Okay, जैसे कि for example hydrogen electrode, or you can take calomel electron as well, calomel electrode as well. Okay, so basically what happens is reference electrodes are electrodes which are used to measure electrode potential of other half cell. Okay, so further अगर हम इसको देखते हैं तो let us discuss first of all hydrogen electrode. So hydrogen electrode, सबसे पहले you should know the apparatus. So it looks like this. So this is basically यहाँ से आपका एक platinum wire जा रहा है यहाँ पे. This is a PT wire, platinum wire. यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आपके अंदर जाते हैं. यहाँ पे पूरा का पूरा एक्वस मीडियम है, वाटर है यहाँ, और यहाँ H प्लस है. तो H प्लस क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और इस इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट करेगा, और यहाँ से आपकी H2 गैस आपकी एलिमिनेट हो जाएगी. ओके, सो दिस इज सिंपल सा apparatus. सो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में कैथोड पे क्या होता है, दिस इज अ इलेक्ट्रोड विच कैन एक्ट एज एनोड एज वेल एज अ कैथोड. ओके, बिकॉज इट इज अ रेफरेंस पॉइंट. दूसरा ऑक्सीडाइज होएगा या रिड्यूस होएगा हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, हम देखते हैं. ओके, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में. सो अगर ये काम कर रहा है एज अ कैथोड, इफ इट इज एक्टिंग एज अ कैथोड, तो यहाँ पे इसमें क्या होगा, रिडक्शन होगा. तो रिडक्शन होगा तो रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन क्या होगी, H प्लस विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एंड इट विल बी कन्वर्टेड टू हाफ मोल्स ऑफ H2 गैस. रिडक्शन हुआ है. ओके, सो आई राइट E नॉट, H प्लस से गए हम H2 पे, और यहाँ पे प्लैटिनम वायर है. तो ये आपकी एक्वस फेज है, ये आपका गैसियस फेज है. तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल विल बी E नॉट, H प्लस से हम जाएंगे H2 पे, फिर हम जाएंगे प्लैटिनम पे. ओके, and that will be equal to 0, and it is assumed to be 0. Okay, assumed to be 0 as very low potential is developed, hence can be neglected. Okay, so this is one part. And secondly, if I want to write SOP, that is standard oxidation potential, then that will be E naught PT H2. H2 कहाँ जाएगा, H plus में जाएगा अगर oxidation होगा तो, that will be also assumed as 0. Okay, so let us move आगे. So it looks like this. H प्लस ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, कन्वर्ट हो गया हाफ ऑफ H2 में. तो E नॉट हम लिखेंगे H प्लस ने H2 में कन्वर्ट हुआ प्लैटिनम की मदद से. तो SRP जो होगा दैट विल बी 0. So if I want to write the quotient, okay, then it will be in terms of pressure. So I'll write not concentration, I'll write pressure. Pressure of hydrogen का half divided by concentration of H plus, because यहाँ पे हाइड्रोजन तो गैस प्रेशर के फॉर्म में होगी, P is the pressure. एंड कभी कभी एक्टिविटी के फॉर्म में भी लिख सकते हो, बट उसको निगलेक्ट कर लो फिलहाल. सो अब N की वैल्यू, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व्ड आर 1 ओनली हियर ना. तो E ऑफ H प्लस से H2 पे गए फिर PT पे, दैट विल गिव यू रिडक्शन पोटेंशियल. ओके, सो आई वांट टू राइट डाउन द नोस्ट इक्वेशन फॉर द सेम. देन E ऑफ H प्लस से H2 पे गए विद PT इज इक्वल टू, इसको इफ हम सॉल्व करेंगे तो इज इक्वल टू E नॉट H प्लस से H2 पे गए PT minus 0.0591 divided by 1, that is 1 is the number of electron involved, log to the base 10 pressure of H2 का half divided by concentration of H plus. So this is the equation which will represent SH, standard condition अगर वो it is acting as a cathode, if it is acting as a cathode. Okay, and if it is acting as anode, so need not to derive. What I will do, I'll directly write it for you. That is, if it is acting as hydrogen electrode as anode, तो अगर ये एनोड होगा तो बटा ऑब्वियस से वहां पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा. एंड अगर ऑक्सीडेशन होगा तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, उसका 0 हो जाएगा. तो आई राइट half of H2 will be converted to H plus, and it will release 1 electron. This is gaseous phase, this is aqueous phase. So quotient will be H plus upon pressure of H2, just half, opposite हो जाएगा ना, N की वैल्यू 1 ही है. So I'll write H E naught PT H2 कहाँ जा रहा है, H plus में जा रहा है. This will be standard oxidation potential. Fine. So इसलिए oxidation potential is equal to standard oxidation potential minus 0.0591 upon 1 log to the base 10 H plus divided by pressure of H2 to the power half.
Okay, so this is how it works. This is another formula which you can use if she is acting as anode. Okay, chaliye, see you in the next class. Till then, happy learning. Bye bye. Take care. Types of metal electrodes. Okay, so let us discuss types of metal electrodes. Okay, so guys, एक तो होता है हमारा metal प्लस soluble salt, metal प्लस soluble salt, एंड एक दूसरा होता है metal प्लस insoluble salt. ओके, और metal प्लस soluble anion. इस तरह से कुछ, जैसे कि एग्जाम्पल सिल्वर सॉलिड प्लस सिल्वर क्लोराइड जो कि एक पीपीटी है, सॉलिड यानी कि, प्लस क्लोराइड दैट इज एक्वस. फाइन. एक और एग्जाम्पल हो सकता है लेड जो कि सॉलिड स्टेट में, इसके साथ में लेड सल्फेट जो कि अगेन एक पीपीटी है, प्रेसिपिटेट या सॉलिड फॉर्म में, और इसके साथ में सल्फेट है जो कि आपका एक्वस यानी कि सॉल्युबल फेज में है. और एग्जाम्पल भी हो सकते हैं आपके, जैसे कि सिल्वर मर्क्यूरी जो कि सॉलिड स्टेट में, फिर आपने डाला Hg2Cl2 जो कि अगेन सॉलिड स्टेट में है, उसके बाद में क्लोराइड जो कि एक्वस स्टेट में है. इधर हम चलते हैं मेटल प्लस सॉल्युबल आयन. तो गाइस क्या होता है, जिंक प्लस जिंक सल्फेट. ये मेटल है, ये हमारा सॉलिड स्टेट एक्वस स्टेट है, ठीक है, सॉल्युबल होता है ना ये. तो दूसरा हो सकता है आपका कॉपर सल्फेट, जैसे कि हम पढ़ के आए हैं अभी. फिर हमारे पास सिल्वर है, सिल्वर नाइट्रेट, ये भी आपका क्या है, एक्वस स्टेट में रहता है, मतलब सॉल्युबल है. ये भी आपका सॉल्युबल है. ये आपका मेटल है, मेटल है, मेटल है. So these are the metals. Okay. So now let's move further more. आगे चलते हैं. So guys, अब क्या हो सकता है, अलग अलग चीजों से समझना पड़ेगा. तो पहले क्या है, केस 1 दैट इज एज अ कैथोड. ओके, तो जैसे मेरे पास ये कंटेनर है और इस कंटेनर में मैंने क्या किया है, इस तरह से एक ब्रिक टाइप की डाली, मतलब इलेक्ट्रोड डाला. अब इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन पोर किया, इलेक्ट्रॉन अंदर जा रहा है. तो जो सिल्वर है, यहाँ पे जो आयंस है Ag+, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं, है ना. तो होगा क्या कि जो Ag+ है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, इट विल बी कन्वर्टेड टू सिल्वर सॉलिड. दिस इज इन द एक्वस स्टेट. देन AgCl will get converted to Ag+ and chloride ion. So this is aqueous state. This is also aqueous state. Okay. एंड यही चीज अगर हम एनोड पे लिखते हैं, तो एनोड में क्या होगा, AgCl इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, Ag+ में जाएगा एंड क्लोराइड विल गेट एलिमिनेटेड. सो ओवरऑल इक्वेशन, इसमें ओवरऑल इक्वेशन क्या हो जाएगी, AgCl दे रहा है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है और Ag में बदल रहा है एंड क्लोराइड विल गेट एलिमिनेटेड. ओके, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. सो ऑन एंड होल अगर मैं आपको बताऊं तो जो AgCl है वो Ag में कन्वर्ट करता है. जब ये ऐसा हो रहा है तो रिडक्शन हो रहा है, और जो AgCl है वो Cl में कन्वर्ट हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है. तो बस इतनी सी बात हो रही है. सॉल्ट इज प्लेस्ड एट मिड पोजीशन, ये बात आपको ध्यान रखनी है. सॉल्ट इज प्लेस्ड एट द मिड पोजीशन, एंड बाकी इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो. आगे चलते हैं. इसी में क्या है, दैट अगर N की वैल्यू 1 है, Q क्या है, रिएक्शन कोएफिशिएंट क्लोराइड के बराबर, बिकॉज वही एनायन है, बाकी तो सब सॉलिड स्टेट में. तो E0Cl- AgCl एंड Ag, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करेंगे. फिर होता है हमारा केस 2. केस 2 क्या है, एक्टिंग एज एन एनोड. अगर वो एनोड की तरह काम कर रहा है तो उस वक्त कैसे इसके साथ डील करेंगे. सो गाइस देखो, मेरे पास ये कंटेनर है, इसमें मैंने इलेक्ट्रोड डाली, इलेक्ट्रॉन यहाँ से एलिमिनेट हो रहा है, मतलब जो Ag+ आयन है वो यहाँ पे डिप कर रहा है, मतलब इट इज एक्टिंग एज अ एनोड. यानी कि Ag किस में कन्वर्ट हो रहा है, Ag+ में इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके. तो जो Ag+ है वो क्लोराइड को एक्सेप्ट करेगा एंड विल बी कन्वर्टेड टू AgCl. So ultimately equation will be Ag plus chloride will get converted to AgCl and electron will get eliminated. So यहाँ पे जो AgCl है उसमें क्या हो रहा है, Cl- भी इसमें कन्वर्ट होता है, और जो Ag है वो भी इसमें कन्वर्ट हो रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे तो ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है. सो N की वैल्यू क्या है, 1 है, और जो Q है वो क्या हो रहा है, 1/Cl-. आप ऐसे कह सकते हैं. तो जो E0 हो जाएगा, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl-, और जो E0 है दैट विल बी E0 ऑफ AgCl and Cl-. So this is the particular point जिसको आपको देखना है. ठीक है, तो क्वेश्चन से समझते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा. So let us discuss. Ag goes to AgCl, then Cl-, then we have Cl-, then we have AgCl, and then we have Ag. This is solid. This is 0.1 molar.
This is 0.01 molar. This one is solid and this one is solid as well. Okay, so guys देखो, concentration cell E naught cell equal to 0. अगर हम एनोड की बात करते हैं तो Ag will accept chloride will be converted to AgCl and electron will get eliminated. So यहाँ पे 0.1 molar ये given है. एंड अगर हम कैथोड की बात करते हैं तो कैथोड में AgCl will accept electron will be converted to Ag and Cl minus. So this is 0.01 molar. Okay, so now it is given in the question. So if I want to write down the net equation, it will be Ag will accept AgCl and Cl minus, it will be converted to Ag plus AgCl plus Cl minus. यहाँ पे concentration of this is 0.1 molar, यहाँ पे concentration is 0.01 molar. Okay, so if I want to write down the E cell, it will be minus of 0.0591 upon 1 log to the base 10 0.01 upon 0.1. So that will furthermore give you 0.0591 log to the base 10 minus में 10 to the power minus 2 into 10 to the power plus 1. So that will be ultimately 0.0591. So this will be the E cell. Okay, so this is how we have to calculate. Now let's move on the second electrode, next electrode, that is calomel electrode. Now what is calomel electrode? Again, it is used as a reference electrode. Second point, metal plus insoluble salt. Metal plus insoluble salt plus soluble in iron. Third point, He liquid plus He2Cl2 solid plus Cl minus. This is aqueous. So this particular thing is mercurous chloride. Okay. Fourth point, platinum is acting as inert electrode. Okay. So इस तरह से इसका कंटेनर, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं. दैट इज सबसे नीचे तो आपका होता है मर्क्यूरी इन द फॉर्म ऑफ अ लिक्विड स्टेट. देन यहाँ पे आपको डिफरेंट फॉर्म मिलेगा जिसको हम कहते हैं मर्क्यूरी क्लोराइड Hg2Cl2. एंड आफ्टर दैट वी हैव क्लोराइड आयन Cl माइनस एक्वस स्टेट में. एंड देन यहाँ से आपकी प्लैटिनम वायर कनेक्ट होगी. दिस इज द प्लैटिनम वायर. सो दिस इज कैलोमल इलेक्ट्रोड. Okay, so this is also a reference electrode and can be used as a cathode as well as a anode. So case 1, if it is acting as a cathode, then what will happen, how it works, we have to see this thing. Okay, so if it is acting as a cathode, तो हमको बस equation याद रखनी है guys. There is no other way out. Reduction होता है यहाँ पे. So होगा क्या, जो mercurous chloride Hg2Cl2, it will be converted to Hg2 plus and 2Cl minus. Then Hg2 plus will furthermore accept 2 electrons will be converted to 2 of Hg. So equation जो इसकी बन के आती है, let me write it here. That is 2 electrons plus Hg2Cl2 plus Hg2 plus will be converted to Hg2 plus 2 of Cl minus and then 2 of Hg. So I'll say that these two will get cancelled out. So we'll get Hg2Cl2 plus 2 electrons will get accepted. Then it will be converted to 2Hg and then plus 2 of Cl minus. So this is liquid state. This one is a solid state and this one is a aqueous state. Okay. So I'll say that Hg2Cl2 will be converted to Cl minus and it will furthermore be converted to Hg as well. Okay. So यही overall हो रहा है. This is something which is happening overall. So E naught of Cl minus with Hg2Cl2 will be converted and then this is the symbol which represents as in cathode. Calomel electrode is the cathode. Okay. So for this again obviously Q will be equal to chloride ion का square. N की value is 2, that you can see number of electrons involved are 2 here. Okay. So E cell, if I want to write down the E cell, then E cell is equal to E naught minus 0.0591 upon 2 log to the base 10 chloride का square. Okay, and now note that cell potential is independent on the reference electrode which we choose. Okay, because of the weight of anything we fix this irrespective of the unit. So we need not to work about all this. Now next thing which we have to see is case number 2.
केस 2 क्या है, व्हेन इट इज एक्टिंग, व्हेन दिस कैलोमल इलेक्ट्रोड इज एक्टिंग एज एन एनोड। तो अगर वो एनोड की तरह काम करती है तो Hg2Cl2 में जो क्लोराइड है वो भी इसमें कन्वर्ट होता है और जो मर्क्यूरी है वो भी इसमें कन्वर्ट होती है। ओके, दिस इज व्हेन इट इज एक्टिंग एज एन एनोड। तो वी हैव टू जस्ट राइट डाउन द इक्वेशन। 2Hg will get converted to Hg2 2 plus 2 electrons and Hg2 2 plus 2 electrons plus 2 Cl minus, okay, will get converted to Hg2Cl2, and overall equation, if I want to write, 2 of Hg plus 2 of Cl minus will get converted to Hg2Cl2 plus 2 electrons. Okay, so now furthermore, E naught Hg Hg2Cl2 with Cl minus, n की वैल्यू 2 है, q की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 of Cl minus का स्क्वायर। So E is equal to E naught minus 0.0591 upon 2 log to the base 10 1 upon Cl minus का square. Okay, so this is calomel electrode when it is acting as a anode. Furthermore, actually let me tell you the relation between, एक्चुअली वो एक डेरिवेशन है, बट डेरिवेशन को डेराइव ना करके, क्योंकि उसमें आपका टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा होगा, दैट इज रिलेशन बिटवीन E naught Cl minus AgCl Ag and KSP. Okay, solubility product of AgCl, solubility product of AgCl. तो इसके लिए guys पूरी equations हैं, everything is there, lots of calculations are there, but I'll just I will suggest that you just learn this equation despite of getting more into the derivation part, because ये फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला KSP की वैल्यू आपको गिवन होती है क्वेश्चन में, और वो इस तरह से कनेक्ट करके आपको क्वेश्चन मिलता है जिसमें दिस इज द इक्वेशन। यहाँ पे ये वाला एक्टिंग एज अ इलेक्ट्रोड, दिस इज KSP एंड दिस इज Ag plus 2Ag। ओके, दिस इज द इक्वेशन जो आप डायरेक्ट लगाओगे तो आपको सॉल्व हो जाएगा। इक्वेशन से समझते हैं इसको। कैलकुलेट E naught Cl minus AgCl Ag of E naught Ag plus 2 Ag is equal to 0.80 volt. Okay, and KSP of AgCl is given as 10 to the power minus 10. So you have to calculate this. So what you will do guys, आप क्या करेंगे, you directly say that E naught Cl minus से AgCl से Ag is equal to 0.0591 log KSP प्लस 0.80। डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा दो, है ना। इसकी वैल्यू KSP की वैल्यू क्या गिवन है 10 टू द पावर माइनस 10, तो जस्ट यहाँ पे डाल दो आप, है ना, डायरेक्ट यूज दैट फॉर्मूला। सो विल गेट 0.0591 log 10 to the power minus 10 plus 0.80, everything is given, just calculate, that is equal to 0.80 minus 0.0591 into 10, that will give you 0.209 volt। तो बस डिस्पाइट ऑफ पूरा कैलकुलेशन यू कैन जस्ट डायरेक्टली स्विच ऑन टू द फॉर्मूला, जस्ट लर्न इट। ओके, बाकी एक्सप्रेशन एक और मैं आपको बता देती हूँ जो कि अगेन इंपॉर्टेंट है, दैट इज फॉर लेड 1। ओके, तो दैट इज लेड सॉलिड है PbNO3 होल ट्वाइस, देन वी हैव सल्फेट आयन, दीज आर ऑल वेरिएशंस, है ना, दीज आर ऑल वेरिएशंस, यू जस्ट हैव टू, आपको एक्चुअली प्रैक्टिस करनी पड़ती है उसकी, बट उतना ज़्यादा टाइम हमारे पास नहीं होता है, मतलब अभी के लिए। सो E naught सल्फेट PbSO4 Pb is equal to E naught Pb plus 2 Pb plus 0.0591 upon 2 log to the base 10 KSP। इसको भी आप याद कर लोगे डायरेक्ट तो आपका फायदा रहेगा, याद नहीं करोगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। क्या प्रॉब्लम होगी, बस प्रॉब्लम यही होगी कि आपको पूरा डेरिवेशन करना पड़ेगा और फिर उससे कंक्लूड करना पड़ेगा, तो इट विल बी मोर ऑफ टाइम कंज्यूमिंग। सो नाउ लेट्स मूव आगे, एंड नेक्स्ट टॉपिक है गाइस, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। सो लेट अस डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ गाइस पॉइंट बाय पॉइंट, रिएक्टिविटी सीरीज,
का एक पूरा का पूरा वो है लिथियम, देन वी हैव पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, chromium, iron, nickel. Then we have tin, lead, copper, silver and gold. Halogens की अगर हम बात करते हैं तो it is iodine, then we have bromine, then we have chlorine, then we have fluorine. Third, if we talk about the ions, oxidation वाले जो होते हैं, oxidizing ones, so we have Cr2O7 2 minus, then we have MnO4 1 minus, then we have H2O2. So this is the electrochemical series and this is the oxidizing power के behalf पे इसमें लिखा हुआ है. ओके, सो मैं आपको एक छोटी सी बात इसमें बता देती हूँ. पॉइंट्स हैं कुछ P2Ps. लेट मी राइट. पहली बात SRP. SRP है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. सो SRP for each cell is measured and down the series SRP increases and SOP decreases. Second point, reduction tendency increases, oxidizing power increases. Need not to write that. Okay, that is very much understood. जो मैंने आपको points लिखवाए हैं बस आप वही ध्यान रखना. So मैं आपको कुछ points बता देती हूँ. जैसे कि for example मैं लिखती हूँ oxidizing power. So oxidizing power में क्या बताया था सबसे अच्छा कौन होगा? Cr2O7 2 minus, then we have MnO2 1 minus, then we have H2O2. तो ये oxidizing power है acidic medium में. Then we have, अगर हम बात करते हैं oxidizing power की halogens की, तो fluorine, then we have chlorine, then we have bromine, then we have iodine. This is the oxidizing power again. Then अगर मैं reduction power की बात करूँगी, then it will be just reverse. That is iodine की सबसे ज़्यादा. Then we'll be having bromine, then we'll be having chlorine, then we'll be having fluorine. Okay, and similarly SRP order भी यही होगा. This will be same. SRP order, sorry यही वाला होगा, ये वाला है ना. This will be SRP order. So guys, thank you so much for joining. See you in the next class. Till then, happy learning. Bye. आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस. ओके, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड और मॉल्टन NaCl. फ्यूज्ड और मॉल्टन का मतलब होता है NaCl को हमने क्या किया हुआ है, पिघला रखा है, मतलब उसको मेल्ट किया हुआ है. ओके, तो ये बेसिकली पार्ट है हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल का. इलेक्ट्रोलिटिक सेल वेयर इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड टू प्रोड्यूस अ केमिकल रिएक्शन, और इसी को दूसरे टर्म्स में हम इलेक्ट्रोलिसिस भी कहते हैं. ओके, अभी तक जो हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर्स तक वो था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. अब हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल. ओके, तो ये भी काफी हद तक सेम है, बस यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है कि यहाँ पे हम बैटरी लगाते हैं और वो बैटरी मतलब करंट की वजह से आपका केमिकल रिएक्शन होता है. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या था, केमिकल रिएक्शन की वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा था. तो जैसे आपने इस तरह से इलेक्ट्रोड्स लगाए हुए हैं, और आप इन इलेक्ट्रोड्स को अगर आप कनेक्ट करते हो गाइस, इस तरह से बैटरी से कनेक्ट कर दिया आपने, और हमारे पास Na+ आयन है और हमारे पास में Cl- आयन है. तो जो निगेटिव, ये आपकी पॉजिटिव प्लेट होगी निगेटिव, तो क्लोराइड आपका पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होएगा और जो सोडियम मेटल है वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होएगा. ठीक है, तो यहाँ पे कैथोड में क्या होगा, Na+ ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, इट विल बी कन्वर्टेड टू सोडियम. और एनोड पे क्या होगा, एनोड पे जो आपका क्लोराइड है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और हाफ ऑफ क्लोरीन गैस आपकी एलिमिनेट हो जाएगी एनोड पे. तो जनरली नोट करना कि यहाँ पे आपकी जो गैस है वो प्रोड्यूस होती है. ठीक है, एनोड पे गैस आपकी प्रोड्यूस होती है. ये हमारा कैथोड हो गया, जहाँ पे जो भी सॉलिड है वो आके एक्यूमुलेट हो जाएगा. तो इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एक्वस सॉल्यूशन. ओके, एंड यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है आपको कि जो कैथोड होता है वो हमारा नेगेटिव होता है टर्मिनल, और जो एनोड होता है वो पॉजिटिव होता है. आपने देखा होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में अपोजिट था, एनोड नेगेटिव था, कैथोड पॉजिटिव था. ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टन MgCl2. तो यहाँ पे जो MgCl2 है गाइस वो कैसे ब्रेक करेगा, Mg+2 आयंस एंड 2 मोल्स ऑफ Cl- में जाएगा. तो ये हमारे कैथोड की तरफ जाएगी
और ये हमारे एनोड की तरफ जाएगी और एनोड पे प्रोड्यूस करेगी क्लोरीन गैस, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा मैग्नीशियम सॉलिड इकट्ठा कहाँ पे, कैथोड पे। ठीक है, दूसरा हमारा क्या हो सकता है, दूसरा हमारा हो सकता है electrolysis of alumina, electrolysis of alumina, that is Al2O3, okay, molten. So अगर आप Al2O3 ले रहे हो गाइस, Al2O3, तो क्या कर रहा है वो, Al+3 एंड यहाँ पे जा रहा है O2 माइनस में। तो जो Al+3 है वो क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और एल्यूमिनियम सॉलिड में बदल जाता है। तो ये कैथोड पे हो गई आपकी, और यहाँ पे क्या होएगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स को एलिमिनेट करेंगे और O2 गैस आपका एलिमिनेट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो जो O2 प्रोड्यूस हुआ है ये क्या बोलते हैं, गैस है, कहाँ पे आएगा, एनोड पे। अब आपको ध्यान रखना है, अगर ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड लगी हुई है ना तो इट इज एक्टिव। अगर ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड अगर है, ठीक है, तो वो एक्टिव इलेक्ट्रोड होती है, और अगर वो एक्टिव होती है तो जो हमारी ऑक्सीजन है वो क्या करेगा, उस ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड को ऑक्सीडाइज करेगा और कन्वर्ट कर देगा कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, और आपकी इलेक्ट्रोड ही समय के साथ साथ गायब हो जाएगी। तो उसको जनरली क्या करना पड़ता है ना, रिप्लेस करना पड़ता है। ओके, अब हम आ जाते हैं अपने एक्चुअल चीज पे, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस। सो इसके कुछ कंडीशंस हैं। पॉइंट 1, इफ मोर देन 1 cation are present in solution, then cation having more value of SRP, cation having more value of SRP is reduced first। जिसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगी वो पहले रिड्यूस होएगा, है ना, अगर 2 से ज्यादा कैटायंस होंगे तो। सेकेंड पॉइंट, इफ मोर देन 1 anion are present, then anion having more value of SOP is oxidized first। Okay, so what you need to do, you have to assume, एक assume करो आप, assume aqueous solution water, ये आपका क्या हो गया, एनोड हो गया, और ये आपका क्या हो गया, कैथोड। ठीक है, तो एनोड पे आपको पता है क्या होती है, ऑक्सीडेशन होता है। सो अगर हम वाटर ले रहे हैं तो वो क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 4H प्लस O2 रिलीज करेगा। तो H+ की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगी, यानी कि जो pH है वो डिक्रीज करेगा और जो POH है वो इंक्रीज करेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, दूसरा क्या होगा, अब कैथोड है, अगर कैथोड की हम बात करते हैं गाइस, तो कैथोड में बट ऑब्वियस रिडक्शन होगा, है ना। अगर हम कैथोड की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन ऑफ वाटर होगा। तो जो आपका वाटर है, ये इक्वेशन आपको दिमाग में रखनी है, याद रखनी है, मतलब ये 2OH- में बदलता है एंड H2 आपकी एलिमिनेट हो जाती है। तो जो कॉन्सेंट्रेशन H+ का वो इंक्रीज करता है, POH डिक्रीज करेगी, और जो pH है वो भी इंक्रीज करेगा, कहाँ पे, नियर कैथोड। सो हेंस near anode pH decreases and cathode पे pH increases, POH increases and cathode की अगर हम बात करते हैं तो pH decreases। so E0 क्या हो जाएगा, SRP that is equal to minus 0.83 volts। ओके, अब क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स। Electrolysis of copper sulfate aqueous using platinum electrode, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लाइक फॉर एग्जांपल प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है तो ये हमने इनर्ट ले लिए हैं, है ना। तो जो कॉपर सल्फेट है गाइस एक्वस, वो आपका कॉपर 2+ में जाता है और सल्फेट आपके प्रोड्यूस होते हैं। तो ये आपका एक्वस है और ये आपका, ये भी एक्वस है। तो इसका वाटर ले लो, इसको भी वाटर ले लो,
ठीक है। तो आपका एनोड, अगर मैं एनोड की बात करती हूँ तो गाइस एनोड में क्या होएगा, जो सल्फेट आयंस हैं और वाटर है ना, ये इनमें से मूव करेंगे तो क्या है, जो सल्फर है वो तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो हाई है। और अगर हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर तो किस तरह से ब्रेक होता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 4H प्लस एंड O2 रिलीज हो जाता है और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका -1.23 वोल्ट है। ये वैल्यूज याद करने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन में मिलती है अगर आता है तो, ठीक है। फिर अगर हम कैथोड पे जाते हैं तो कैथोड में क्या होगा, कॉपर प्लस आयंस वर्सेस वाटर। तो कॉपर +2 आयंस है गाइस, मतलब कौन जाएगा है ना किस इलेक्ट्रोड पे, तो कॉपर के पास है, तो E0 इज इक्वल टू पॉजिटिव 0.34 वोल्ट, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। सो 2 मोल्स ऑफ वाटर, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके किस में बदलेगा, 2 ऑफ OH माइनस एंड H2। यहाँ पे जो E0 है वो है -0.83 वोल्ट्स। ओके, तो जो SRP है कॉपर 2+ की, वो क्या है, हाई है, आपको दिख रहा है पॉजिटिव में, यानी कि ये ही जाएगा आपके पॉजिटिव कैथोड पे, ठीक है। सो जो नेट रिएक्शन होगी ओवरऑल, जो नेट रिएक्शन होगी वो ये होगी, 2 मोल्स ऑफ वाटर प्लस 2 मोल्स ऑफ कॉपर 2+ आयंस विल गेट कन्वर्टेड टू 4 मोल्स ऑफ H+ एंड देन O2 प्लस 2 मोल्स ऑफ कॉपर। अब ये कहाँ हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा आपके कहाँ पे, कैथोड पे, ये आ जाएगा आपके एनोड पे। नाउ सिंस concentration of H+ increases, so pH decreases and solution becomes acidic. So अगर मेरा कॉपर है कैथोड पे, ऐसे आपको करना है, कॉपर 2+, कॉपर सल्फेट मैंने लिख दिया, कॉपर 2+ SO4 2- और वाटर को मैंने लिखा H+ एंड देन OH-। तो मैं आपको बताऊंगी, देखो ये जो है ये तो कहाँ पे जाता है, एनोड पे, ऐसा भी याद रख सकते हो। कॉपर 2+ कहाँ जाएगा, कॉपर कैथोड पे, और सल्फेट और H2 ये दोनों मिला के एक दूसरे से क्या बना देंगे, H2SO4 एज द बाय प्रोडक्ट। तो दिस इज दिस, यूजिंग दिस पर्टिकुलर थिंग यू कैन मेमोराइज इफ यू वांट टू, ओके। सो नाउ यू कैन यूज डिफरेंट मेथड। एक और इसी में हो सकता है गाइस, जहाँ पे हम क्या लेते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट aqueous using copper electrode। सो देखो जैसे मेरे पास कॉपर सल्फेट है, वो जाता है कॉपर 2+ आयंस में एंड सल्फेट आयंस में, और एनोड की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास सल्फेट है, वाटर है ना। तो अगर हम कॉपर की बात करेंगे तो वो किस में बदलेगा, कॉपर 2+ एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स विल गेट एलिमिनेटेड। और जो सल्फेट है वो तो ऑक्सीडेशन स्टेट हाई है, जाने का नहीं कहीं पे भी। पानी की अगर हम बात करते हैं तो क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 4H+ एंड O2, फाइन। तो इफ वी जस्ट टॉक अबाउट कैथोड, अगर हम कैथोड की बात करते हैं तो कैथोड में क्या, कॉपर 2+ आयंस वर्सेस वाटर, इनमें से कौन जाएगा। तो हमें पता है कॉपर 2+ तो क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके कॉपर में बदलेगा, और जो वाटर है वो 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, 2 मोल्स ऑफ OH- एंड H+ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रियलिटी में जो कॉपर है और कॉपर 2+ है वो फर्दर मोर जाता है कॉपर 2+ में एंड कॉपर में। तो कॉपर 2+ कॉपर में कन्वर्ट करेगा और यहाँ कॉपर 2+ में बदलेगा। तो ये चीज़ हमारी एनोड पे हो जाएगी और ये चीज़ कैथोड पे हो जाएगी। सो कॉपर 2+ इज कॉन्स्टेंट, ओके। तो उसको आप स्पेक्ट्रेटर आयन भी कह सकते हो। इस मेथड को आप यूज़ कर सकते हैं मेटलर्जी के दौरान, जब हम इलेक्ट्रोरिफाइनिंग करते हैं एंड क्लीनिंग करते हैं मेटल्स की, ओके। उसकी डिटेल्स में हमें जाने की जरूरत नहीं है। अब हम आ जाते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous silver nitrate using platinum electrode। प्लैटिनम नोट करना कि दिस इज अ इनर्ट इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड इनर्ट जब होती है तो वो मतलब रिएक्ट नहीं करती है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास Ag+ है, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके Ag में बदलेगा। और अगर हम वाटर की बात करते हैं तो उसका ऑलरेडी SRP जो है वो कितना है, पॉजिटिव में 0.80। अगर हम नाइट्रेट की बात करेंगे तो इसका तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब इससे ऊपर और ऑक्सीडेशन स्टेट जा ही नहीं सकता, तो इट कैन नॉट बी रिड्यूस्ड फर्दर और ऑक्सीडाइज, इट कैन नॉट बी फर्दर ऑक्सीडाइज्ड।
तो जो हमारा वाटर है वो तो ऑक्सीडाइज हो सकता है 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके 4H प्लस एंड देन O2 के फॉर्म में, ये हमें पता ही है, यानी कि ये चीज़ हमारी हो जाएगी एनोड पे। तो जो नेट इक्वेशन मिलेगी वो होगी 4 of HAG plus 2 moles of water gives 4 moles of H plus and 4 moles of Ag plus O2. Okay, so further mass of silver at cathode increases, Ag plus decreased, H plus की बात करेंगे, अगर इंक्रीज कर रहा है तो pH आपका डिक्रीज करेगा, तो मतलब एसिडिक सोल्यूशन बनेगा ओवरऑल, है ना। तो अगर मैं वैसे ही शॉर्टकट से बताऊं तो Ag प्लस सिल्वर नाइट्रेट था, Ag प्लस ऐसे लिख सकते हैं पानी के लिए H प्लस एंड देन OH माइनस। तो गाइस OH माइनस से O2 आपकी प्रोड्यूस होती है कहाँ पे, एनोड पे। Ag प्लस कन्वर्ट होता है Ag में, हमें पता है, और HNO3 आपका साइड प्रोडक्ट होता है जो देता है HNO3। इससे पता चलता है कि ओवरऑल सोल्यूशन क्या एसिडिक है। तो बस इस छोटी सी ट्रिक से आप कैलकुलेट कर सकते हो अगर कभी आए तो। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स पे। ओके गाइस, सो लेट अस डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स। सो गाइस कंडक्टर्स आपके हो सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स, दूसरे हो सकते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। ओके, सो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स की बात करोगे तो जो मेटल है, चार्ज कैरियर यहाँ पे कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और अगर हम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स की बात करते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। तो यहाँ पे जो चार्ज कैरियर होंगे दे आर आयंस। ओके, सो इसी को अगर हम आगे लेकर चलते हैं तो गाइस रेजिस्टेंस की बात अगर हम करते हैं, आपने थोड़ा सा सुना होगा, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ये एक फॉर्मूला है। ओके, जहाँ पे जो रो है वो इंडिकेट कर रहा है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को या रेजिस्टिविटी को, एल अपॉन ए इंडिकेट करता है सेल कांस्टेंट, जिसका यूनिट सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स होता है। इसी को अगर मैं कंडक्टेंस के टर्म्स में कहूँ तो वो होता है 1 अपॉन रेजिस्टेंस, एंड जो यूनिट होती है रो की वो होती है ओम सेंटीमीटर। एंड जो रो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कापा। कापा इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ओके, व्हाट इज कापा, दिस इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस, एंड कापा इज इक्वल टू ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। जैसे कि मैंने आपको बताया रो का अपोजिट होता है तो यूनिट भी उसकी अपोजिट हो जाएगी। ओके, सो इसी के टर्म्स में एक चीज है जिसको हम बुक कहते हैं मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी। सो मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम से नोट करते हैं। सो लैम्डा एम इज इक्वल टू के इंटू वी। ओके, जिसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो गाइस लैम्डा एम इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी, ऐसे आप यूज कर सकते हो। एंड इसकी जो यूनिट होती है वो होती है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ओके, तो ये इसकी यूनिट है। बेसिकली इट इज द कंडक्टिविटी ऑफ V मिलीलीटर्स ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। ओके, सो डेफिनेशन पे जाने की हमें जरूरत नहीं है, जस्ट छोटा सा फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। एक होती है गाइस इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ओके, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हम लैम्डा ई से डिनोट करते हैं, सेम है, बस आपको क्या करना है, यहाँ पे m की जगह पे क्या लगा देना, नॉर्मेलिटी 1000 अपॉन n इज द नॉर्मेलिटी, यूनिट सेम आ जाएगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स बस। ओके, नाउ रिलेशन बिटवीन लैम्डा एम एंड लैम्डा सी, लैम्डा एम और लैम्डा ई के बीच में जो रिलेशन है वो होता है लैम्डा आर इज इक्वल टू लैम्डा एम अपॉन वी एफ। वी एफ इज वेलेंसी फैक्टर, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू वेलेंसी फैक्टर मल्टीप्लाई बाय मोल मोलारिटी। ओके, तो ये इक्वेशन है जो कभी अगर आपको दिख जाए एग्जाम में तो यू कैन डायरेक्टली यूज। एक्चुअली वो पूरा कैलकुलेशन है, उससे हमें जाने की जरूरत नहीं है। एंड इफ यू वांट टू नो व्हाट इज वेलेंसी फैक्टर, तो वेलेंसी फैक्टर इज द टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज। ओके, टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। लाइक फॉर एग्जाम्पल NaCl की मैं बात करती हूँ तो ये कैसे टूटता है, Na प्लस और Cl माइनस ना, तो टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या है 1। इफ आई टॉक अबाउट MgCl2 देन व्हाट इज द चार्ज, इट इज 2।
अगर मैं बात करती हूँ AlCl3 का तो ओवरऑल चार्ज क्या है 3, तो दिस इज द वैलेंसी फैक्टर, नथिंग मोर देन दैट। ओके, इसके बाद हम आ जाते हैं कोलरॉश लॉ पे गाइस। नाउ नेक्स्ट टॉपिक व्हिच वी हैव टू डिस्कस हियर इज कोलरॉश लॉ। कोलरॉश लॉ क्या, इट इज वैलिड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ओनली। ओके, वैलिड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब होता है हम एक्सेस में वाटर डाल देते हैं, तब तक वाटर डालते हैं जब तक कंडक्टिविटी क्या हो जाए, कांस्टेंट ना हो जाए। ठीक है, तब तक वाटर डालते हैं जब तक कंडक्टिविटी क्या हो जाए, कांस्टेंट ना हो जाए। सो मोलर कंडक्टिविटी फॉर सोल्यूशन, ये जो कोलरॉश लॉ है वो बोलता है दैट मोलर कंडक्टिविटी of solution is sum of molar conductivity of all cations and anions. Okay, so like for example, if I want to write lambda m infinity for sodium chloride, then it will be lambda m infinity for sodium ion and lambda m infinity of chloride ion. If I want to write lambda m infinity for AlCl3, then it will be lambda m infinity for Al plus 3 and thrice of lambda m infinity of Cl minus. If I want to write lambda m infinity of Al2SO4 whole thrice, then it will be what? It will be like, अब अगर मैं कंडक्ट मोलर कंडक्ट इसकी बात करती हूँ ना मोलारिटी की, तो I have to write it like this only, that twice of lambda m infinity of Al plus 3 and thrice of lambda m infinity of SO4 2 minus. So this is how it works. Okay, and this is general सा formula. इसके रिस्पेक्ट में एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं so that it will be यहीं कर लेते हैं गाइस। जैसे कि for example, at infinite dilution CH3COONA NaCl and HCl की जो ये lambda m infinity है, it is given as x1 x2 and x3. I have to calculate for acetic acid, मुझे कैलकुलेट करना है, तो हाउ विल इट, व्हाट शुड बी, क्या मुझे कैलकुलेट करना है, इसकी क्या होगी लैम्डा एम इन्फिनिटी एसिटिक एसिड की। तो गाइस इसके लिए इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। अगर मैं इसको लिखती हूँ जैसे कि लैम्डा एम इन्फिनिटी फॉर CH3 COONA विल बी लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ CH3 COO plus lambda m infinity of Na plus. Similarly, lambda m infinity for NaCl will be lambda m infinity of Na plus and lambda m infinity of Cl minus. Similarly, if I want to write down for HCl, then lambda m infinity for HCl will be lambda m infinity for H plus and lambda m infinity for Cl minus. Okay, so this is equation number 1, this is equation number 2, and this is equation number 3. So what I do, if I use one funda, that is मुझे कैलकुलेट करना है, तो इक्वेशन नंबर 1 ओके प्लस इक्वेशन नंबर 2, आई एम सॉरी इक्वेशन नंबर 3 माइनस इक्वेशन नंबर 2 अगर मैं करूँगी तो आई गेट द आंसर। ओके, तो मुझे क्या हो जाएगा, इसके साथ में ये ऐड होएगा, इसके साथ में ये सब्ट्रैक्ट होएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, और इसके साथ में ये सब्ट्रैक्ट होएगा तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे ये दोनों आ जाएंगे ना, तो आई गेट lambda m infinity for acetic acid to be lambda m infinity of CH3COO minus plus lambda m infinity of H plus. Okay, so यानी कि इससे मुझे जो आंसर मिलेगा मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ। Okay, so this is how this particular law works. Okay, now we have to see next topic, that is graphical representation basically. Okay, so एक ग्राफ है, that is molar conductivity and concentration, relation between molar कंडक्टिविटी एंड कॉन्सेंट्रेशन के बीच में जो रिलेशन है वो हमें कैलकुलेट करना है। सो गाइज, अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, मैं बस आपको डायरेक्ट बता देती हूँ कि मेरे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, आई हैव
strong electrolyte, then for that equation is lambda mc is equal to lambda m infinity minus b root c, जहाँ पे b और c कांस्टेंट होते हैं. हक्कल्स इक्वेशन है ये. ओके, दिस इज हक्कल्स इक्वेशन एंड ग्राफ इस तरह से आता है. लैम्डा एम सी, यहाँ पे अगर लैम्डा एम इन्फिनिटी है, यहाँ पे लैम्डा सी है, तो इट विल मूव लाइक दिस. दिस इज फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. ओके, furthermore, if I want to write down case 2, that is for weak electrolyte. Okay, for a weak electrolyte जब जो अल्फा होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत कम होता है. जैसे कि एग्जाम्पल में आप ले सकते हो एसिटिक एसिड ले सकते हो, वीक इलेक्ट्रोलाइट है. अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हो, विच इज अगेन वीक इलेक्ट्रोलाइट. तो उसके लिए जो कॉन्सेंट्रेशन कर्व आएगा वो कुछ ऐसा होता है, मतलब एक एक्सपोनेंशियल कर्व आता है जो कि खत्म ही नहीं होता है ना. तो अगर वॉल्यूम इंक्रीज करता है, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगा, लैम्डा एम सी भी इंक्रीज करेगा, एंड लैम्डा एम इन्फिनिटी कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय दिस कर्व. ओके, एंड इफ यू टॉक हियर, देन यहाँ पे as volume increases concentration decreases. Okay, and if concentration approaches 0, volume will be infinity. Furthermore, we can study next thing, that is Faraday's first law of Faraday's for electrolysis. This is basically Q is proportional to W. जो क्या इंडिकेट करता है वो मैं लिख के आपको बता देती हूँ. That is amount of substance deposited or discharged at any electrode is proportional to the amount of charge passed through that solution. Okay, amount of substance deposited or discharged, amount of substance deposited or discharged at any electrode is proportional to amount of charge passed through solution. Okay, so Q increases, W increases, that is Q is proportional to W. W is equal to Z into Q. What is Z? Z is electrochemical equivalent, and W is the amount of substance which is deposited. Okay, and one equivalent is equal to equivalent mass, that is E mass. It is also termed as E grams, and 1 mole is equal to molar mass, and we say it is M grams. Okay, if you want to, and 1 equivalent electron is passed. अगर 1 equivalent electrons पास किए हैं तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पास किए हैं, मतलब इतना चार्ज 96500 कूलम चार्ज पास किया है. ओके, सो अगर हम इसको आगे लेकर चलते हैं, सो विल गेट W is equal to Z into Q. If this is E grams, charge is 96500 coulombs, then Z is equal to E upon 96500, and W is equal to E upon 96500 Q, and W is equal to EQ upon 96500. Okay, this is one of the equation. Furthermore, we know that Q is equal to I into T, that is current is equal to charge is equal to current into time. So W is equal to EIT upon 96500, where W is the weight in grams, T is the time in seconds, and I is the current in amperes, and E is, but obviously it is equivalent mass in grams. And if we want to include valency factor, then valency factor और n factor भी हम इसको कहते हैं, that is equivalent mass is equal to molar mass upon valency factor,
and E is equal to M upon valency factor. Fine. So then W is equal to MIT upon VF into 96500, and W upon M is equal to N is equal to IT upon valency factor multiplied by 96500. So N is equal to IT upon valency factor multiplied by 96500. So these are the equations which you can directly use, directly correlate with. Okay. So if you want to get now see, next thing is if efficiency of cell, if efficiency of cell is eta, then percent eta is mass observed upon mass theoretical multiplied by 100, and weight observed is equal to EIT multiplied by eta upon 96500. And if efficiency is 100%, then eta is equal to 1, then N mole is equal to IT multiplied by eta divided by valency factor multiplied by 96500. Okay, so this is how it works. Okay, thank you so much for joining. Till then, happy learning. Bye bye, see you.